Hello students, welcome to the next lecture of structure of atom. In this lecture we are going to discuss about a new model of atom that is called as quantum mechanical model, which will cover up the drawback of Bohr atomic model. If you remember from the last lecture, we studied few important points in Bohr atomic model. Let us revise it one more time. Bohr atomic model is a quantized model. It says that electron always revolve in a fixed orbit that are called as stationary energy level with a particular energy. And if you remember, I've also given you the formula to calculate the energy of particular shell, that is E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught the whole square 2 pi square me4 upon n square h square. In shortcut, in electron volt we can calculate as minus 13.6 electron volt per atom, z square upon n square, where z stands for the atomic number, n stands for the shell number. So according to Niels Bohr, the electron revolved in a fixed orbit, and between those fixed orbit there is an empty space where the probability of finding the electron is zero, called as node. वो fixed orbit के अलावा और कोई दूसरे orbit, multiple orbits नहीं बना सकता. Secondly, when electron revolves in a fixed orbit, there are two forces of attraction, that is electrostatic force of attraction and centrifugal force. Both are balanced, therefore it does not radiate energy when it is revolving in the fixed orbit because both the forces are counterbalance. ये रुदरफोर्ड का करेक्शन किया था उसने. Plus he said when you supply energy to an electron, the electron jump from the inner shell, that is called as lower energy level, which is very close to the nucleus, to the outer shell, that is called as excited state or higher energy level. When you supply it energy and when it absorbs that energy, it jumps from lower to higher. But when it jumps back from higher to lower, it will radiate energy of the same amount in the form of radiation. And if you study those radiation on screen, they are called as spectrum. And if you remember, hydrogen ka spectrum discontinuous tha, where you have a band, where you have a bright band, then a dark band, bright band, dark band, bright band, dark band. तो ये डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम प्रूफ करने के लिए नील बोर ने ये सजेस्ट किया था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन अ फिक्स ऑर्बिट, इफ यू कैन रिकलेक्ट फ्रॉम माय लास्ट लेक्चर. बट देयर वाज अ ड्रॉबैक. One of the drawback of Niels Bohr model was failure in explaining the splitting of bands or the splitting of spectral line. एक बार वापस से उसको देख लेते हैं. In magnetic field and electrical field, magnetic field में इसको Zeeman effect बोलते हैं, electrical field में इसको Stark effect बोलते हैं. So according to Rutherford, suppose this is the nucleus, if the electron is present in the first shell, suppose the second shell, third shell, 1, 2 and 3, suppose electron jump from lower energy level to the higher, third में आ गया वो, supplying energy. Now when the electron goes back from higher energy level to the lower energy level, it gives out radiation, जिसका स्क्रीन पे बैंड आएगा. ओके, तो एक बैंड ये क्रिएट हो गया स्क्रीन पे बिकॉज ऑफ द जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. समझो थर्ड से फर्स्ट में गया. नाउ इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यू विल सी अ सिंगल बैंड, बट इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड this band will have a hyperfine lines in between the splitting of the bands. They have a hyperfine lines in between. So this hyperfine lines in the Kerner band appears in the presence of magnetic field, which is called as Zeeman effect, and if it is in the electrical field, it is called as Stark effect. So when the question was asked to the Bohr theory, okay, why there is a splitting of lines or splitting of bands, which is called as splitting of spectral lines, why it happens when you study the spectra under magnetic field, उसके पास कोई explanation नहीं था. The theory could not able to explain the splitting of spectral line, कि अगर इलेक्ट्रॉन 3 से 1 में जंप कर रहा है तो उसका एक बैंड आ गया, अगर उसका एक बैंड आ रहा है तो वो मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिटिंग क्यों दिखा रहा है, मल्टीपल बैंड्स अंदर क्यों दिखा रहा है, मतलब एक ही बैंड के अंदर आपको छोटे छोटे बैंड्स दिखाई दे रहे, व्हाई? तो वो नील बोर के पास उसका एक्सप्लेनेशन नहीं था. एंड दीज बैंड्स आर सीन इन मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इन इलेक्ट्रिकल फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड में इट इज कॉल्ड एज Zeeman इफेक्ट, इलेक्ट्रिकल फील्ड में इट इज कॉल्ड एज Stark इफेक्ट. बट इसका क्वेश्चन नील बोर के पास नहीं था, सो रिसर्च होता चला गया. नाउ यू हैव टू लिसन टू मी केयरफुली. आफ्टर फ्यू इयर्स देयर वाज अ साइंटिस्ट नेम्ड डी ब्रॉकली. He studied the dual nature. He studied the dual nature of radiation. रेडिएशन में ये जो पार्ट है इसका डिटेल में एक लास्ट लेक्चर लूंगा, बट फिर भी एक थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के लिए कि डी ब्रॉगली said after researching the dual nature of radiation,
We know that radiation travel in the form of wave, but later on it was proved कि radiation have a particle nature as well as wave nature. Particle nature as well as wave nature. इसका मतलब radiation एक continuous source wave नहीं होता. अगर वो source से निकल रहा है तो, अगर वो किसी source से radiation निकल रही है तो वो continuous source में नहीं है, but वो particle में है. Can you see this? अभी मैं इसको break कर रहा हूँ तो see, if you see properly, it has small particle. This is the packets. These packets are called as quanta or photons. तो photons are the particle of radiations. ये photon अपनी जगह पे वाइब्रेट होते हैं और प्रोपोगेट होते हैं. इसके लिए जब वो वाइब्रेशन पे जाते हैं अपने मीन पोजीशन पे प्रोपोगेट होते हैं, यू विल सी अ हाइपोथेटिकल वेव नेचर. लाइक व्हेन यू थ्रो अ बॉल इन अ स्टिल वाटर, जैसे ही वो बॉल जाएगा स्टिल वाटर के अंदर, वहां पर वेव प्रोड्यूस होगा. तो दे आर नथिंग बट द वाटर मॉलिक्यूल व्हिच आर वाइब्रेटिंग एट द मीन पोजीशन एंड मूविंग अहेड. सो व्हेन दे मूव अहेड यू विल सी अ हाइपोथेटिकल वेव इन दैट. सो दिस was studied by de Broglie, and after the experiment of Davison and Germer, de Broglie suggests कि even electron which is moving charge particle, it has mass. मतलब इलेक्ट्रॉन, earlier it was proved कि it has mass, it is a particle. हमको पता है इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, लेकिन जब वो मूव करेगा it will move in the form of wave, oscillating at mean position and moving, so it will form a hypothetical wave. मतलब according to de Broglie, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में ऐसा नहीं जाएगा, but the electron का movement will be in the form of what? A wave in the first orbit. और अगर वो वेव बना रहा है तो उसका एम्पलीट्यूड होगा. दिस एम्पलीट्यूड आर गिवन बाय साई, फंक्शन साई. लाइक हम लोग इसके एम्पलीट्यूड को ए से डिनोट करते हैं. इसके इलेक्ट्रॉन वेव विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैटर वेव, इसको एम्पलीट्यूड को हम लोग साई से डिनोट करते हैं, ग्रीक लेटर. तो वो आपको समझना चाहिए कि रेडिएशन एक एनर्जी है, वो मूव हो रही है इन द फॉर्म ऑफ वेव, एज वेल एज इट हैज अ पार्टिकल दैट इज कॉल्ड एज क्वांटम और फोटोन. सिमिलरली अगर कोई पार्टिकल है और वो मूव हो रहा है तो उसके पास वेव नेचर भी होगा, लाइक दैट, डुअल नेचर. सो इलेक्ट्रॉन हैव अ डुअल नेचर. इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं आपको लास्ट लेक्चर में दूंगा, बट अभी फिर दिमाग में बनाना कि अकॉर्डिंग टू de Broglie द इलेक्ट्रॉन बिहेव लाइक इन द फॉर्म ऑफ वेव, दे मूव, दे हैव अ वेव नेचर. ओके. सेकेंडली, according to Niels Bohr, electron always revolved in a fixed orbit. In a fixed orbit at a certain distance from the nucleus, that is called as a radius. Fixed orbit में घूम रहा है, but electron को उसने ऐसा represent किया है, moving in a fixed orbit like this, making orbits to understand the concept. But Heisenberg uncertainty principle. Heisenberg was the name of a scientist. He proposed a principle called as uncertainty principle. Uncertainty principle के हिसाब से वो क्या बोल रहा है? वो ये बोल रहा है, and it is very simple to understand, कि we cannot exactly find out the value of position and momentum of electron, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूस मूव कर रहा है. अगर वो कंटिन्यूस मूव कर रहा है और आपने उसका एक पिक्चर क्लिक किया, तो जब तक कि वो पिक्चर डेवलप होगा वो इलेक्ट्रॉन आगे मूव कर चुका होगा एट दैट टाइम. फॉर एग्जांपल, अ पर्सन इज रनिंग कंटिन्यूसली, इफ यू क्लिक अ पिक्चर, उसका पिक आएगा, जैसे ही पिक आप उसका देखोगे आपके फोन में, वो बंदा उस जगह से आगे बढ़ चुका होगा. इट मीन्स एट दैट टाइम व्हेन यू सी द पिक, the person is not at the original position, he has moved away from that position. So आपको किसी भी कंटिन्यूस मूविंग चीज का एग्जैक्ट पोजीशन आपको नहीं पता रहता है, आपको अनसर्टेन पोजीशन, अनसर्टेन पोजीशन पता रहता है कि भाई वो बंदा x1 और x2 के बीच में होगा, बिकॉज जब आपने पिक देखा वो वहां से निकल चुका था. सिमिलरली व्हेन इट इज इन द सर्कुलर मोशन, at every angle it will change its direction, तो velocity will change because velocity is vector quantity and mass into velocity. अगर वो particle है तो mass into velocity is called as momentum, the momentum will change. So according to Heisenberg uncertainty principle, we cannot find exact position, we cannot find exact momentum of a moving electron, but we can find uncertain position, x2 minus x1 range, or uncertain momentum or uncertain velocity of a, मतलब exact velocity भी नहीं ढूंढ सकते because velocity vector quantity, अगर डायरेक्शन चेंज होगा तो velocity चेंज हो जाएगी, बट exactly हम नहीं फाइंड कर सकते because electron is under continuous motion. So according to Heisenberg uncertainty principle, we cannot find exact position, we cannot find exact velocity, therefore we cannot find exact momentum. But what we can find the uncertainty in position, that is range, x2 minus x1, भाई यहीं कहीं होगा इलेक्ट्रॉन. So we can find uncertainty in position and uncertainty in velocity.
that is greater than equal to a constant that is h upon 4 pi, where h is Planck constant 6.6 10 to minus 34 joule seconds. ठीक है, but we know that uncertainty in momentum that is equal to h upon 4 pi. So product of uncertainty in position and uncertainty in momentum is greater than equal to h upon 4 pi. आप कैलकुलेशन में हमेशा इक्वल लेना सॉल्व करने के लिए. बट वी नो दैट मोमेंटम इज नथिंग बट मास इंटू वेलोसिटी. मास तो इलेक्ट्रॉन का कांस्टेंट होगा, therefore डेल्टा x इंटू मास इंटू डेल्टा v इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई बिकॉज मास कांस्टेंट है. तो वी कैन राइट डाउन डेल्टा x इंटू डेल्टा v इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m. Using this equation you can find uncertainty in position, uncertainty in velocity. Using this equation you can find uncertainty in position or uncertainty in momentum. तो हाइजेनबर्ग ने ये प्रूफ कर दिया कि इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन हम लोग नहीं बता सकते. तो नील बोर बोलता था कि द इलेक्ट्रॉन मूव्स इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट. तो दैट इज बीन रूल्ड आउट, क्योंकि आप एग्जैक्ट पोजीशन बता रहे हो कि भाई वो ऑर्बिट 1 में है ना, इट्स बीन रूल्ड आउट. सो व्हेन इट इज बीन रूल्ड आउट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट प्रॉपरली. अगर मैं डी ब्रॉगली को ये पूछ रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में किधर है, तो वो मुझे ऐसा बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन द फर्स्ट शेल यहां पर, where the radius of first hydrogen Bohr orbit, the first orbit का radius if you remember 0.529, that is 0.53 angstrom. radius का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था 0.529 n square by z. तो n आप 1 लोगे z 1 लोगे, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस 0.529 मतलब ऑलमोस्ट 0.3 पकड़ के चलो कि भाई इलेक्ट्रॉन आपको यहां मिलेगा. बट ऐसा नहीं होता, इट्स नॉट लाइक दैट. हाइजेनबर्ग रूल्ड आउट दिस कि तुम एग्जैक्ट पोजीशन कैसा बता सकते, क्योंकि इधर ही है, एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते कोई भी इलेक्ट्रॉन का. उसके बाद में a new model came into existence which actually believed the dual nature of electron, that electron actually have a wave function, it moves in the travel in the form of wave, and that model is called as quantum mechanical model. quantum mechanics. अब आप classical physics से quantum physics में आ गए. Now, quantum mechanical model will help us to understand the most probable location where you can find the electrons, or help us to understand the orientation of electron around the nucleus. कि न्यूक्लियस के आसपास किस तरीके से इलेक्ट्रॉन अपने आप को ओरिएंट करता है, ये क्वांटम मैकेनिक्स हम लोगों को बता रहा है. तो हाइजेनबर्ग एंड श्रोडिंगर, ये दो साइंटिस्ट थे, अराउंड 1920 से 1926 तक they worked on the quantum mechanics. They proposed a new model. It's a 3-dimensional arrangement of electron around the nucleus. इस मॉडल से आप फाइंड कर सकते हो 3D मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, टू अंडरस्टैंड इज ओरिएंटेशन करेक्टली और मोर प्रिसाइसली. इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड में स्टडी किया गया, और उसी के हेल्प से जो स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन था उसका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ. अब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. तो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड आफ्टर दिस हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कि व्हाट इज दैट इक्वेशन फॉर क्वांटम मैकेनिक्स. सो around 1926 Heisenberg and Schrodinger, they work on the quantum mechanical, and we get a Schrodinger wave equation which says delta square psi, which is the amplitude of the electron wave का amplitude है. हम लोग ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन हैव अ डुअल नेचर, पार्टिकल क्योंकि उसका मास है, एज वेल एज वेव नेचर कि वो वेव के फॉर्म में जा रहा है. डेल स्क्वायर psi अपॉन डेल्टा स्क्वायर psi अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर psi अपॉन डेल्टा वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर psi अपॉन डेल्टा जेड स्क्वायर प्लस E minus V, where E stands for the total energy, V stands for the potential energy, into 8 pi square m upon h square, yeah, into psi is equal to 0. This is called as Schrodinger wave equation, which comes from the quantum mechanics, where psi is the amplitude and psi square is the we can say, if you find the value of psi square you will get the intensity of electron around nucleus. तो ये इक्वेशन सॉल्व करके हमको ये मालूम पड़ता है कि व्हाट इज ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 डायमेंशनली
अराउंड न्यूक्लियस। ओके, इससे ये मालूम पड़ता है हम लोगों को, ये इक्वेशन सॉल्व करते हैं। लेकिन लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये इक्वेशन से आपको प्रैक्टिकल अप्रोच क्या मिला। सो अगर मैं हाइड्रोजन की बात करता हूं, सो हाइड्रोजन हैज फर्स्ट वन इलेक्ट्रॉन, इट हैज वन इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट शेल। ओके, सो इफ आई टॉक अबाउट द बोर एटॉमिक मॉडल, तो बोर एटॉमिक मॉडल मुझे हाइड्रोजन ऐसा बना के दे रहा है कि दिस इज द न्यूक्लियस सम इन द सेंटर एंड दिस इज द फर्स्ट शेल वेयर द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग। ओके, लेकिन if you talk about the quantum mechanics, if you solve this Schrodinger wave equation for the first shell of the hydrogen, where x, y and z are the three coordinates of a position of electron, जिसको differentiate करके आप मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन का निकाल सकते हो कि फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन अपने आप को न्यूक्लियस के आसपास कैसा ओरिएंट करता है। नील बोर ने बोला कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में रहता है, ठीक है फर्स्ट शेल में रहता है, बट वो अपने आप को ओरिएंट कैसा कर रहा है, हाउ इट इज arranging, how it is moving around the nucleus. So according to Schrodinger wave equation, according to quantum mechanics, if we try to represent the electron position in the first orbit of hydrogen, तो हम लोग उसको ऐसा represent करेंगे, बराबर देखना। What is this basically? So basically these dots are nothing but orientation or you can say the position of electron। मतलब assume करना है कि ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, चलो assumption, hypothetical assumption। ओके, ये न्यूक्लियस है, मतलब यहाँ पर प्रोटॉन है, यहाँ पर वन प्रोटॉन है सेंटर में। अब ये एक इलेक्ट्रॉन है, सही है। अब देखो इसका आपको इलेक्ट्रॉन यहाँ मिल रहा है, इसका पोजीशन यहाँ मिल रहा है, इसका पोजीशन यहाँ मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है। तो बेसिकली ये एक स्पेरिकल लोब बना रहा है, एक स्पेरिकल ग्लोब बना रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, और इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज द एनर्जी ऑफ द फर्स्ट शेल। बोलेंगे सर ये इतने सारे डॉट्स क्यों? तो दीज आर डॉट्स नथिंग बट द ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। अपने आपको उस तरीके से स्पेरिकल मैनर में उसने न्यूक्लियस के आसपास अपने आपको ओरिएंट करके रखा है। और जब इस इलेक्ट्रॉन की आप एनर्जी निकालोगे, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है और ये इसके इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रॉन का। So these are nothing but the position of electrons, or you can say the orientation of electron around the center nucleus. The center nucleus. अब इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आप कैलकुलेट करोगे तो -13.6। तो आप बोलोगे सर ये तो फर्स्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है। मैंने बोला यस, ये फर्स्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है, बट ये अपने आप को इस तरीके से ओरिएंट करता है अराउंड द न्यूक्लियस। ओके, एंड व्हेन यू प्लॉट अ ग्राफ, बराबर देखना, व्हेन यू प्लॉट अ ग्राफ ऑन y axis using this equation, on y axis when you take 4 pi r square psi square versus the radius, this is the radius. Now this 4 pi r square psi square is nothing but the probability of electron around nucleus, and this is the radius from the center, from the nucleus. तो आपको ग्राफ अभी जब यहाँ पर है, देखो 0.5 का रेडियस मैंने प्लॉट किया है, दिस इज 1.0, दिस इज 1.5, दिस इज 2.0, तो मुझे ग्राफ है ना कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। सी द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इज फाउंड अराउंड 0.53 के आसपास, जो भी हम लोग ने निकाला। मतलब यहां से लेके यहां तक 0.53 एंगस्ट्रॉम है, तो यहां पर आप लोगों को मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी मिलेगा फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। इसका मतलब ये है कि आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट मत करो, इतना एम्प्टी स्पेस मत छोड़ो, बट इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को डॉट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, वेयर दिस इज नथिंग बट द ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। एंड दिस orientation of electron around the nucleus, or this density of a nucleus, you get when you get the value of psi square for the first orbit. तो psi square का वैल्यू सॉल्व करोगे तो आपको ये इंटेंसिटी इलेक्ट्रॉन्स की मालूम पड़ेगी अराउंड द न्यूक्लियस। सो गाइस, ये है फर्स्ट ऑर्बिट अकॉर्डिंग टू नील बोर, एंड अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स इन द फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन अपने आप को इस तरीके से ओरिएंट करता है अराउंड द न्यूक्लियस। सो दिस orientation of electron around the nucleus, this three-dimensional orientation around the nucleus is called as orbitals. And in first shell
the electrons are orienting themselves around the nucleus in a spherical manner. These orbitals are called as s orbitals, which derive, this s stands for sharp. This word is coming from spectroscopy और from spectrophotometer डिवाइस है जिससे हम लोग रेडिएशन के थ्रू स्पेक्ट्रल लाइंस और उसके बारे में स्टडी करते हैं. सो इट सेज कि इन फर्स्ट ऑर्बिट द इलेक्ट्रॉन अरेंज देमसेल्फ इन अ स्फेरिकल मैनर अराउंड अ न्यूक्लियस. सो दैट ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ऑर्बिटल्स. और जो सबसे पहला ऑर्बिटल होता है वो है एस ऑर्बिटल शार्प, जिसका ओरिएंटेशन स्फेरिकल मैनर में होता है अराउंड न्यूक्लियस. ओके, सो ये एक नया टर्म आ गया, दैट इज अबाउट द ऑर्बिटल. सो इफ यू सी when you plot the probability of electron around the nucleus, this value is the probability of electron around the nucleus in radius. You will get a peak. The maximum probability is around 0.53. मतलब जो नील बोर ने बोला था कि 0.53 is the radius of first orbit, क्वांटम मैकेनिक्स उसको बोलता है कि 0.53 एंगस्ट्रॉम पे आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी मिलेगी. मतलब इलेक्ट्रॉन वहां पर ज्यादा पाया जा रहा है, वो सिंगल इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का वहां ज्यादा पाया जा रहा है. सो दैट इज व्हाई these orientation of electron, the three-dimensional orientation of electron, the exact placement of electron is obtained from quantum mechanics, and these are termed as orbital. और first shell में s orbital होता है spherical, और s का मतलब sharp है, spectroscopic term. Now similarly if you talk about second orbit, हम लोग second orbit की बात करते हैं, तो second orbit में जो electrons होते हैं, अच्छा दूसरी एक और बात मैं क्लियर कर दूं कि ईच एंड एवरी ऑर्बिटल कैन हैज मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन. मतलब इस s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं. वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को स्पेरिकल मैनर में न्यूक्लियस के आसपास ओरिएंट करेंगे, और दे आर मूविंग इन द फॉर्म ऑफ वेव, दे आर ऑसिलेटिंग एंड मूविंग. तो मतलब दे आर प्रोड्यूसिंग अ वेव नेचर. ये भी दिमाग में रखना जरूरी है, क्योंकि उस वेव नेचर के एम्पलीट्यूड से, साई फंक्शन से आप मोस्ट प्रोबेबल रेंज बता सकते हो इलेक्ट्रॉन्स का. ओके, सो फर्स्ट शेल हैज s orbital which has 2 electron. Every orbital can have 2 electron. Now let us talk about second. तो सेकेंड ऑर्बिट में आपको याद होगा 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं. तो ये अपने आप को किस तरीके से ओरिएंट करेंगे, हाउ दे विल ओरिएंट देमसेल्फ अराउंड द न्यूक्लियस. सो द इलेक्ट्रॉन लिविंग इन द second orbit can orient themselves in 2 manner. First is the spherical manner, and second is the dumbbell shape manner. डंबल शेप आपने डंबल्स को देखा होगा कि सेंटर में ग्रिप होता है और हेवी लोड्स उसके साइड पे होते हैं. सो अगर मैं इसको स्ट्रेट करके लिखूं तो आपको एक लोड डंबल का यहां दिखेगा, एक लोड डंबल का यहां दिखेगा, एंड हियर देयर विल बी अ ग्रिप. अब ग्रिप छोड़ दो और अज्यूम करो कि यहां पर न्यूक्लियस है सेंटर में, एंड दीज लोब्स आर नथिंग बट द पोजीशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन ही है जो आपको ऊपर एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना के दे रहा है, लोब बना के दे रहा है, नीचे एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड लोब बना के दे रहा है. सो दिस ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इज डंबल शेप, एंड दिस ओरिएंटेशन इज कॉल्ड एज ऑर्बिटल, एंड दिस ऑर्बिटल इज कॉल्ड एज p ऑर्बिटल, प्रिंसिपल ऑर्बिटल, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म. ठीक है, बट p ऑर्बिटल न्यूक्लियस के आसपास तीन तरीके से रह सकते हैं. अलोंग z एक्सिस, तो इसको हम लोग pz ऑर्बिटल बोलेंगे. सपोज ये न्यूक्लियस है, ये उसका x एक्सिस है, तो यहां पर वो एक लोब बना रहा है डंबल का, यहां एक लोब बना रहा है डंबल का. सो नाउ दिस विल बी कॉल्ड एज px. और सपोज ये जो क्रॉस आ रहा है दैट इज नथिंग बट परपेंडिकुलर एक्सिस पे. ये तीनों एक्सिस परपेंडिकुलर. यू कंसिडर अ न्यूक्लियस, दिस इज द z एक्सिस, दिस इज द x एक्सिस, और y एक्सिस आपके सामने आ रहा है. तो y एक्सिस पे जब लोब बनेगा, सपोज ये y एक्सिस है और इस पे जो लोब बन रहा है इलेक्ट्रॉन का डंबल शेप का, तो दिस विल बी कॉल्ड एज py ऑर्बिटल. सो इन केस ऑफ सेकेंड शेल द इलेक्ट्रॉन कैन ओरिएंट देमसेल्फ इन स्फेरिकल मैनर फॉर्मिंग s ऑर्बिटल, और इन अ डंबल शेप मैनर फॉर्मिंग अ p ऑर्बिटल. तो मतलब अगर मुझे फर्स्ट और सेकेंड का, अच्छा ईच एंड एवरी ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब pz में भी 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, px में भी 2 रह सकते हैं, py में भी 2 रह सकते हैं. मतलब इन शॉर्ट p के 3 ऑर्बिटल होते हैं, px, py, pz. इसके लिए इन तीनों ऑर्बिटल को मैं लिख सकता हूं p सब शेल. तो ये आपके दिमाग में डाल सकता हूं भाई कि सेकेंड ऑर्बिट, सेकेंड शेल में 2 सब शेल है,
एस एंड पी, बट एस का एक ही ओरिएंटेशन है स्पेरिकल, बट पी में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 6 हो सकते हैं जिनके 3 ओरिएंटेशन है, along x, along y, along z. So that is why we can have 3 orbitals in p subshell. So we can say कि second orbit can have s and p subshell. S has only one orientation, therefore s orbital ही बोलोगे, but p subshell has 3 orientation, px, py, pz. डम्बल शेप. अच्छा, इन सब में दो दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इसके लिए टोटल देखो 2 2 2 एंड 2, टोटल कितना हो गया, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए सेकंड के अंदर. सो s ऑर्बिटल कैन हैव 2 इलेक्ट्रॉन, p कैन हैव टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, px में 2, py में 2, pz में 2, मैक्सिमम 6 रह सकते हैं. इसके लिए 6 + 2 8 हो गया. सो दैट इज व्हाई. अच्छा, ये आपको डिफरेंशिएशन कब मिलेगा? इन दी प्रेजेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. इन दी एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यू कैन नॉट डिफरेंशिएट देमसेल्फ. Why? उसका रीजन क्या है? Because electron is a moving charge particle. It is a tiny magnet. Any moving charge particle will create a magnetic field. तो इलेक्ट्रॉन एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, लेकिन जब आप उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो इलेक्ट्रॉन अपने आप को अरेंज करता है, आइदर स्पेरिकली और डम्बल शेप अराउंड द न्यूक्लियस. सो यू कैन सी different orientation around nucleus, but if the magnetic field is off, there is no magnetic field. ये सब की एनर्जी सेम होती है. मतलब in the absence of magnetic field, the electron in these orbitals have same energy. You cannot differentiate them. They are called as degenerate orbital. Degenerate मतलब same energy. But in the presence of magnetic field, the electron present in a particular orbit, आपने second orbit लिया था, electron present in a second orbit will have different set of energy. 2s 2p की एनर्जी डिफरेंट हो जाएगी, उनके अलग ओरिएंटेशन हो जाएंगे अराउंड न्यूक्लियस के. तो अभी अगर मुझे फर्स्ट और सेकेंड शेल का डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन आपको बताना है विद रिस्पेक्ट टू ऑर्बिटल्स, तो आपको अज्यूम करना है कि फर्स्ट शेल हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स. सो हाउ दोस 2 इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज? सेंटर में न्यूक्लियस है, दीज आर नथिंग बट द 2 इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट शेल. नाउ सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है. तो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है सेकेंड शेल के वो अपने आप को इस तरीके से ओरिएंट कर रहे हैं अराउंड न्यूक्लियस. सी प्रॉपर्ली. तो ये हो गया आपका 1s, ये हो गया आपका 2s. इसके बीच में जो एम्प्टी आ रहा है स्पेस, दे आर कॉल्ड एज नोड, एंड दीज नोड्स आर कॉल्ड एज स्पेरिकल नोड्स विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 0. आपको पता होगा फर्स्ट और सेकेंड ऑर्बिट के बीच में जो एम्प्टी स्पेस होता है, हम लोग ने पहले भी देखा है. सिंस ये 1s और 2s के बीच में आ रहा है, स्पेरिकल ऑर्बिटल के बीच में आ रहा है, इसलिए इसको स्पेरिकल नोड बोल रहे हैं. अभी सेकेंड ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन अपने आप को स्पेरिकली ओरिएंट कर चुके हैं, बना चुके हैं 2s. बट व्हाट अबाउट दी p ऑर्बिटल? सो p सब शेल में अज्यूम कर लेंगे हम लोग 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 ईच. तो ये कब देखने को मिलेगा? इफ देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑन. बराबर देखना, सपोज दिस इज योर z एक्सिस, तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स, ऊपर एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना रहे, नीचे एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना रहे. सी प्रॉपर्ली. यहां नहीं दिखेंगे इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज अगर आप इस ऑर्बिटल की बात करोगे तो ये न्यूक्लियस है, तो ऑर्बिटल देखो यहां दिख रहा है आपको, दिस इज नथिंग बट द ऑर्बिटल एंड दिस इज नथिंग बट द ऑर्बिटल अबव एंड बिलो द न्यूक्लियस. डम्बल शेप. ये 2 ही इलेक्ट्रॉन है जो अपने आप को ऊपर भी ओरिएंट कर रहे हैं और अपने आप को नीचे भी ओरिएंट कर रहे हैं. दीज आर नथिंग बट द पोजीशन. सो वी से दिस इज एन इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबव द न्यूक्लियस, बिलो द न्यूक्लियस. सी प्रॉपर्ली. यहां पर आपको इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखेंगे क्योंकि यहां पर न्यूक्लियर एरिया है. So if you draw a plane here like this, we can say that in this plane, center plane, there is a nucleus where you cannot find electron. The probability of finding the electron is 0. So this plane is called as nodal plane or planar nodes. So we have spherical nodes जो s orbitals के बीच में रहता है. We have planar nodes जो p orbital के बीच में रहेगा. कि obvious बात है, बीच में आ जाएगा nucleus where the probability of finding the electron is 0. तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन दिखेंगे ही नहीं. डम्बल शेप, हाफ डम्बल ऊपर बन रहा है, हाफ डम्बल नीचे बन रहा है. तो दिस नाउ ऑर्बिटल विच इज फॉर्म, दिस इज विल बी कॉल्ड एज pz. नाउ 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो px में, तो सपोज दिस इज योर x एक्सिस, तो देखो एक लोब यहां दिखाई देगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स का लोब यहां दिखाई देगा, हाफ डम्बल इधर, हाफ डम्बल इधर. तो ये ऑर्बिटल हो गया px. नाउ दिस इज y एक्सिस, ऑल 3 एक्सिस आर परपेंडिकुलर. तो आपको देखो 2 इलेक्ट्रॉन का लोब यहां दिखाई दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का लोब यहां दिखाई दे रहा है. सी प्रॉपर्ली. यहां दिखाई दे रहा है.
So this orbital will be called as what? py orbital. Now ये सारे differentiation, अब देखो ये 2s 2pz 2s ऑर्बिटल 2pz ऑर्बिटल 2px ऑर्बिटल 2py ऑर्बिटल, ये सारे ऑर्बिटल्स आपको कब दिखेंगे? ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी तो सेकेंड शेल के आपको ऑर्बिटल्स दिखाई नहीं देंगे, उनके ओरिएंटेशंस नहीं दिखाई देंगे. व्हाई? बिकॉज मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन इज अ टाइनी मैग्नेट, इट ट्राई टू ओरिएंट देमसेल्फ अराउंड द न्यूक्लियस. सो आपको ये ओरिएंटेशन दिखेगा ही नहीं. अब बराबर देखोगे तो s ऑर्बिटल इज क्लोज टू न्यूक्लियस, p ऑर्बिटल इज फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, थोड़ा न्यूक्लियस से दूर रहते हैं इनके लोब्स, और s ऑर्बिटल के जो लोब्स है वो न्यूक्लियस के नजदीक होते हैं. वन मोर थिंग, p ऑर्बिटल्स आर डायरेक्शनल बिकॉज दे आर प्रेजेंट अलोंग द एक्सिस, बट s ऑर्बिटल जो है वो स्पेरिकल है. स्पेरिकल मतलब सब जगह से न्यूक्लियस को सराउंड कर रहा है, तो उसका कोई डायरेक्शन ही नहीं होता. तो s ऑर्बिटल्स आर नॉन डायरेक्शनल, p ऑर्बिटल्स आर डायरेक्शनल. तो यू कैन क्लियरली सी how the electrons get split up, how they will orient themselves under magnetic field. अब थोड़ा सोचो आप कि इलेक्ट्रॉन जंप किया था, सपोज वो जंप किया था सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में. तो जब इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करेगा फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू द लोअर एनर्जी लेवल, इट विल गिव आउट दिस रेडिएशन. सपोज ये बैंड आ गया, लेकिन अंडर मैग्नेटिक फील्ड यू विल सी द स्प्लिटिंग. व्हाई यू विल सी द स्प्लिटिंग? उसका रीजन क्या है? बिकॉज अंडर मैग्नेटिक फील्ड 2s और 2p जो सेकेंड ऑर्बिट के ही है उनकी एनर्जी डिफरेंस हो जाती है. मतलब 2p की एनर्जी थोड़ी ज्यादा हो जाती है किससे? 2s से. और 2s की एनर्जी किससे ज्यादा होती है? 1s से. तो देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स के ओरिएंटेशन मैग्नेटिक फील्ड में होगी. अगर मैग्नेटिक फील्ड हटा दोगे तो इनमें आपको डिफरेंशिएशन एनर्जी नहीं मिलेगा. सो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रॉन पहले जंप किया होगा 2p से 2s में, फिर 2s से जंप किया होगा 1s में. तो बराबर देखो, जब वो 2p से और वी कैन जब वो सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है तो वो सेकेंड ऑर्बिट के 2p से पहले 2s जाएगा, तो उसका एक बैंड यहां बन जाएगा. फिर वो 2s से 1s में जा रहा है तो एक बैंड आपको बन रहा है. इसके लिए ये जो बैंड बन रहा है इसमें आपको मल्टीपल बैंड्स दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज ऑर्बिट्स के अंदर जो ऑर्बिटल है उसमें भी आपको ट्रांजिशन देखने को मिलता है. सो बिकॉज ऑफ दोस ट्रांजिशन यू सी स्प्लिटिंग. मतलब अगर मैं 2 से 1 में जा रहा हूं तो देखो स्प्लिटिंग ऐसा दिखाई दे रहा है. आप बोलेंगे सर ये एक बैंड 2 में क्यों स्प्लिट हो गया? मैंने बोला इसके लिए क्योंकि सेकेंड ऑर्बिट में इंटरनल ट्रांजिशन भी है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड हटा दोगे तो फिर सिर्फ वो 2 से 1 में ही आपको दिखाई देगा, एक ही बैंड दिखेगा. लेकिन अब मैग्नेटिक फील्ड ऑन कर दोगे तो जो इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में होते हैं, द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द सेकेंड ऑर्बिट विल ओरिएंट देमसेल्फ अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट energy of under the influence of magnetic field, the energy of 2p is slightly greater than the energy of 2s. So when under the magnetic field when the electron is jumping, वो 2p से पहले 2s जाएगा, फिर 2s से 1s जाएगा. तो 2p से 2s का एक बैंड यहां मिला आपको, और 2s से 1s का एक बैंड आपको यहां मिला. इसके लिए टोटल एक बैंड में 2 स्प्लिटिंग आपको दिखाई दे रही है. ओके, दिस इज कॉल्ड एज स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस. सो स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस क्यों हो रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड में अराउंड द न्यूक्लियस डिफरेंट एनर्जी लेवल से डिफरेंट एनर्जी लेवल से अपने आप को ओरिएंट कर रहे हैं. दोज ओरिएंटेशन आर कॉल्ड एज ऑर्बिटल्स. सो सेकेंड शेल कैन हैव 2 टाइप्स ऑफ ओरिएंटेशन, स्पेरिकल एंड डम्बल. स्पेरिकल इज s, डम्बल इज p. p के 3 ओरिएंटेशन है, px, py, pz. And each and every orientation is called as orbital, and each and every orbital can have maximum 2 electrons. Okay, now अगर हम लोग बात करेंगे थर्ड शेल की, I'll rub this out. तो अगर मैं बात कर रहा हूं थर्ड शेल की, ध्यान से देखना. सो थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? हम लोगों ने देखा 18 रह सकते हैं. सर ये 18 कैसा रहेंगे? मतलब ये 18 रहते हैं और मैग्नेटिक फील्ड में अपने आप को अलग अलग तरीके से ओरिएंट करते हैं. इन थर्ड शेल द इलेक्ट्रॉन कैन ओरिएंट देमसेल्फ इन स्पेरिकल मैनर फॉर्मिंग s ऑर्बिटल, इन डम्बल शेप मैनर फॉर्मिंग p ऑर्बिटल, एंड इन डबल डम्बल शेप मैनर फॉर्मिंग d ऑर्बिटल. मतलब 3 तरीके से अपने आप को ओरिएंट कर सकते हैं. s तो आपको पता है स्पेरिकली, p आपको पता है 3 एक्सिस पे वो अपने आप को ओरिएंट करेगा, px, py, pz. लेकिन D के 5 ओरिएंटेशन होते हैं, d z स्क्वायर, d
x square y square d xy d yz d xz बराबर देखना. Each and every orbital can have maximum how many electrons? 2. तो s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं. p can have 6, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इन px, 2 इलेक्ट्रॉन इन py, 2 इलेक्ट्रॉन इन pz. दो दो अपने आप को ओरिएंट करते हैं. तो p के आपको समझना है कि p एक हाइपोथेटिकल सबशेल्स है और उस p में 3 ओरिएंटेशन आपको मिलेंगे अलोंग x y and z एक्सिस विद 2 इलेक्ट्रॉन ईच. मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं ऑर्बिटल में. नाउ d हैव 5 ऑर्बिटल्स. तो ईच ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन. हियर इट कैन हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स. टोटल हो गया डी में कितना? 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम. सो 10 प्लस 6 प्लस 2 गिव्स यू व्हाट? 18. तो 18 इलेक्ट्रॉन कैसा? अगर मैं बोल दिया थर्ड ऑर्बिट में टोटल 18 इलेक्ट्रॉन है तो वो कैसा ओरिएंट करेंगे अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड में? तो आप बोलेंगे सर 2 इलेक्ट्रॉन स्पेरिकल ओरिएंट करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन डंबल शेप में करेंगे. 2 on px, 2 on py, 2 on pz. Remaining 10 electron will orient themselves as d orbitals. So let's see how they will orient themselves. If I talk about dz square, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन अपने आप को कैसा ओरिएंट करते हैं? If this is the nucleus, see those 2 electrons, they are forming a lobe above the nucleus, dumbbell, half dumbbell, and a donut ring. देखो ऐसा अपने आप को ओरिएंट करते हैं. So it is dumbbell with a donut ring. मतलब अगर मैं इसको सॉलिड लाइन से बना दूं, जो नहीं बनाना चाहिए, बट सपोज समझाने के लिए, जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन, so it is forming a dumbbell and a donut ring shape. A single dumbbell and this is present along the z axis. तो इसको हम लोग बोलेंगे dz square. तो इसमें इलेक्ट्रॉन इस तरीके से ओरिएंट होते हैं कि अगर ये न्यूक्लियस है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन देखो आपको यहाँ अलग अलग जगह आपको मिल रहे हैं. तो यहाँ एक लोब बना दिया, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोल सकते हैं इसको, बिकॉज दिस इज नथिंग. इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ यू विल गेट दिस पिक्चर एज इलेक्ट्रॉन क्लाउड. यहाँ आपको इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिलेगा, 1 लोब अबव, 1 लोब बिलो, एंड दे विल फॉर्म अ रिंग अराउंड दैट इलेक्ट्रॉन क्लाउड, डोनट रिंग. सो इट इज क्लोवर लीफ शेप और यू कैन से सिंगल डंबल डोनट रिंग शेप, dz square present along the z axis. Now if I talk about dx square y square, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन अपने आप को न्यूक्लियस के आसपास कैसा रखते हैं? So if this is the nucleus, यही बनाता हूं मैं. Suppose this is your x axis, this is the y axis. So those 2 electrons will form a half lobe here, half lobe here, half lobe here, half lobe here. So basically those 2 electrons form 1 dumbbell, 2 dumbbell, double dumbbell. तो dx square y square is double dumbbell. इनफैक्ट ये 1 2 3 4 ये चारों डबल डंबल है. सिर्फ ये सिंगल डंबल क्लोवर डोनट रिंग शेप है dz square. Otherwise all 4 are double dumbbell. Now dx square y square is present. The electrons are orienting themselves on x and y axis. On x and y axis. Even in case of dz square, the electron orient themselves on z axis. इसके लिए ये दोनों एक्सियल ऑर्बिटल्स है. इनमें इलेक्ट्रॉन अपने आप को किस तरीके से ओरिएंट करता है मैग्नेटिक फील्ड में? z एक्सिस पे और x और y एक्सिस पे. सो dx square y square is double dumbbell, dz square is single dumbbell donut ring. So these are nothing but the lobes of electron form along the x and y axis. अब क्वेश्चन ये कि सर dxy कहाँ होगा? तो मैं बोला इमेजिन करो this is the nucleus, this is your x axis, this is your y axis, x and y. Okay? तो देखो आपको एक लोब, 2 इलेक्ट्रॉन्स का लोब यहाँ मिल रहा है, लोब यहाँ मिल रहा है, द ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ मिल रहा है, हाफ लोब यहाँ मिल रहा है. आप बोलेंगे सर ये डबल डंबल है. मैं बोला हाँ, C1 डंबल, सेकंड डंबल, बट दीज डंबल्स आर नॉट प्रेजेंट ऑन द एक्सिस. दीज डंबल्स आर प्रेजेंट बिटवीन x and y एक्सिस. तो द एरिया between the axis are called as planes. So dxy is present in xy plane or between xy axis. dyz will be present between yz axis or yz plane. dxz will be between xz axis or xz plane. So these 3 are planar orbital and these 2 are axial orbital, जिसमें से ये 4 डबल डंबल है और ये सिंगल डंबल डोनट रिंग है. So this is how d orbital will orient themselves. These are planar between axis. dx square y square on x and y, dz square on z axis, dxy between x and y, dyz between y and z, dxz between x and z, forming double dumbbell orientation. Okay,
So these are about d orbital. So see properly, d can have maximum 10 electron, p can have maximum 6 electron, s can have maximum 2 electrons. Now when you talk about fourth shell, I'll rub this out. Fourth shell, now when you talk about fourth shell, your fourth orbit, electrons in fourth orbit can orient themselves in s, in p, in d and in f fashion. Now s has only one orbital, spherical, 2 electron ले सकते. p is divided into 3 orbital, px, py, pz, 2 2 2, 6 electrons. d is divided into 5 orbital, dx square, y square, dz square, dxy, dyz, dxz, total 10 electrons. And f is divided into 7 orbitals. इसके लिए हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसके लिए 7 ऑर्बिटल में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स. सो F कैन हैव मैक्सिमम 14, D कैन हैव मैक्सिमम 10, P कैन हैव 6, S कैन हैव 2. अगर टोटल ऐड करोगे तो इट बिकम्स 24 प्लस 6 32. तो फोर्थ शेल, इफ यू रिमेंबर, फोर्थ शेल कैन हैव 32 इलेक्ट्रॉन्स. सो अगर मैं आपको पूछूंगा फोर्थ शेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स अपने आपको किस तरीके से ओरिएंट करें, तो आप बोलेंगे सर 2 इलेक्ट्रॉन S में, 6 इलेक्ट्रॉन P में, 2 on Px, Py and 2 on Pz, 10 electrons D में, 2 in dz square y square, 2 in dx square y square, 2 in dxy, dyz, dxz, and remaining 14 electron is present in F because F is divided into how many subshells? 7 subshells. How many orbitals? 7 orbitals. In each orbital can have maximum 2 electrons. Okay. अब orbitals क्या G, H, I भी हो सकते हैं. बट उतने ज्यादा एलिमेंट्स नहीं है तो उतना ज्यादा हमको जानने का जरूरत नहीं है. तो ऑर्बिटल कैन बी एस, कैन बी पी, कैन बी डी, कैन बी एफ, कैन बी जी, कैन बी एच, लाइक दैट इट कैन बी ऑर्बिटल्स. बट वी आर रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू एफ. एफ तक किया हमारा सिलेबस में काफी है. एस स्टैंड्स फॉर शार्प, पी स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल, डी स्टैंड्स फॉर डिफ्यूज, एफ स्टैंड्स फॉर फंडामेंटल. दीज आर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स. एंड ये यहां से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यूजिंग क्वांटम मैकेनिक्स वी कैन फाइंड exact orientation of electron 3-dimensionally, or you can say quantum mechanics help us to understand the 3-dimensional movement of electron around the nucleus, or 3-dimensional orientation of electron around the nucleus, which are termed as orbital. So if I say electron is living in the first orbit, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि उसका एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का. बट फर्स्ट ऑर्बिट में सर वो अपने आप को स्पेरिकल फैशन में ओरिएंट करेगा. इफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट द सेकेंड ऑर्बिट, सर अपने आप को वो स्पेरिकल एज वेल एज डम्बल शेप में ओरिएंट करेगा. अगर वो थर्ड में है तो सर वो स्पेरिकल में भी ओरिएंट कर सकता है, डम्बल में भी, और डबल डम्बल डी ऑर्बिटल्स में. अगर वो फोर्थ शेल में है तो 4 टाइप के ओरिएंटेशन हो सकते हैं. फिफ्थ शेल में 5 टाइप के ओरिएंटेशन, जी और एच ऑर्बिटल भी हो गए. बट दोज एलिमेंट्स आर नॉट देयर. दोज उतने ज्यादा एलिमेंट्स के लिए हम लोग को जी एच की जरूरत नहीं है. वी आर रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू एस, पी, डी एंड एफ ऑर्बिटल्स. So we finished the application of quantum mechanics to explain the orientation of electron around the nucleus, to explain you about the shell subshells. Now after this, let's move on to the next part. Let's move on to the next part called as quantum numbers. The quantum numbers are basically, in simple terms, they are the address of electrons. एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ, इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में, कौन से सब शेल में, कौन से ऑर्बिटल्स में है. इट इज प्रेजेंट विद सब शेल, हाउ इट इज ओरिएंटेड इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिटल्स. मतलब फर्स्ट शेल में एस है तो इलेक्ट्रॉन वहां हो सकता है, सेकेंड ऑर्बिट में एस में हो सकता है, पी में हो सकता है, थर्ड ऑर्बिट में एस, पी, डी किसी में भी हो सकता है. तो बेसिकली इट गिव्स यू द एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन के वेयर द इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट. नाउ क्वांटम नंबर्स, दिस वर्ड क्वांटम इज बिट फ्रॉम द क्वांटम मैकेनिक्स. क्वांटम का मतलब ही होता है बिट पार्टिकल, छोटा सा पार्टिकल, और क्वांटम मैकेनिक्स उसी पे ही डील करता है टू अंडरस्टैंड
द थ्री डायमेंशनल पोजीशन ऑफ बिट पार्टिकल्स, जो हम लोग ने इसके पहले इक्वेशन लिखा था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, वहां से ये वर्ड आ रहा है क्वांटम नंबर्स। तो क्वांटम स्टैंड्स फॉर बिट एंड इलेक्ट्रॉन इज अ बिट पार्टिकल। बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स का यूसेज क्या है? टू फाइंड आउट द थ्री डायमेंशनल पोजीशन ऑफ दोज मैटर और दोज पार्टिकल विच आर अनसीन। इलेक्ट्रॉन इज अनसीन, उसका पोजीशन फाइंड करने के लिए, उसका ओरिएंटेशन फाइंड करने के लिए यू यूज दैट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। एंड व्हेन यू सॉल्व दैट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, आपको यह मालूम पड़ जाएगा कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है, कौन से सब शेल में है और कौन से ऑर्बिटल में है। तो हमको तीन चीज मालूम पड़ती है आफ्टर सॉल्विंग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन विच ऑर्बिट, इन विच सब शेल एंड इन विच ऑर्बिटल, हाउ इट इज ओरिएंटेड इन दैट सब शेल। मतलब पी में है तो पी में किस तरीके से, पी एक्स पी वाई पी जेड। डी में है तो डी जेड स्क्वायर पे है या डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पे है, उनका ओरिएंटेशन भी आपको मालूम पड़ेगा। इसके लिए दैट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हेल्प अस टू फाइंड आउट थ्री लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेल, सब शेल एंड ऑर्बिटल। सो बेसिकली हेल्प अस टू फाइंड आउट द एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए वहां से टर्म यूज हुआ क्वांटम नंबर्स, हमको बताएगा कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है, कौन से सब शेल में, कौन से ऑर्बिटल में। द फर्स्ट क्वांटम नंबर इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नाउ दिस क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इज डिनोटेड बाय स्मॉल एन। इट टॉक्स अबाउट द शेल नंबर, मतलब आप शेल या ऑर्बिट बोल सकते हैं। शेल हम लोग पहले जानते थे के एल एम एन एंड सो ऑन। नाउ शेल will be written as 1, 2, 3, 4 and so on. मतलब K shell is the first shell, second shell is the L shell, like that. So N gives you an idea about the shell number कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में प्रेजेंट है। Using this N value, you can also find the energy of electron. आपको याद होगा energy of electron in any orbit is given by the formula 1/4 pi epsilon naught the whole square, which is a Coulomb constant into 4 pi square me4 upon n square h square. या शॉर्टकट में वी कैन राइट डाउन -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, या जूल्स में याद होगा आपको 1312 किलो जूल्स पर मोल z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, वे z स्टैंड्स फॉर एटॉमिक नंबर, n स्टैंड फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये मैंने लास्ट लेक्चर में दे चुका हूँ। अच्छा, n का वैल्यू यूज करके यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट, दैट इज 0.529 एंगस्ट्रॉम n स्क्वायर बाय z। तो आप इससे किसी भी इलेक्ट्रॉन का रेडियस निकाल सकते हैं। n वैल्यू यूज करके आप फाइंड कर सकते हैं कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन अ शेल, दैट इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n स्क्वायर। तो इफ आई से फर्स्ट शेल, n वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 2 into 1 2 इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड शेल n वैल्यू 2, तो 2 2 4 2 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो सेकेंड शेल में 8 होते हैं। इफ आई से n वैल्यू इज 3, तो 3 3 9 into 2 18 इलेक्ट्रॉन्स। सो यू कैन फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ रिस्पेक्टिव शेल। Plus you can also find number of subshell by formula n square. If I say first shell, तो n value 1 होगा, तो 1 square 1, मतलब it has only one orbital। आपको पता है फर्स्ट में s होता है। If I say second shell, तो 2 square, मतलब 4 orbital, 1 will be s, 1 will be px, py, pz, देखो 4 orbitals बने। थर्ड शेल 3 3 9 ऑर्बिटल्स, s, px, py, pz, dxy, dyz, dxz, dx square y square, dz square, 9 ऑर्बिटल्स। लाइक इक्वल टू 4 16 सबशेल, क्योंकि f के भी 7 आ जाएंगे, क्योंकि sp आएगा उसके अंदर। सो नंबर ऑफ सबशेल भी फाइंड कर सकते हैं, रेडियस फाइंड कर सकते हैं, एनर्जी फाइंड कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन शेल फाइंड कर सकते हैं। प्लस यू कैन ऑल्सो, इफ यू रिमेंबर फ्रॉम द बोर ऑर्बिट, द ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम MRV, orbit angular momentum is given by the formula nh upon 2 pi, where n is nothing but the integral multiple, that is nothing but the shell number. So using this principal quantum number, you can find the shell number, energy, radius, number of subshell, number of electrons. The second quantum number azimuthal quantum number or secondary quantum number or subsidiary quantum number. This azimuthal quantum number is given by small l. It talks about सबशेल। तो सबशेल कौन से हम लोग यूज करेंगे, एस पी डी एफ जी एच, इसकी जरूरत नहीं है, एस पी डी एफ न याद रखो।
azimuthal quantum number value for S subshell is 0, P subshell is 1, B subshell is 2, F subshell is 3, G is 4, H is 5, but उतना जरूरत नहीं है यहाँ तक याद रखने का. If I say S subshell, L value will be 0, azimuthal quantum number will be 0. If I say F subshell, L value will be 3. Okay? Now, using this azimuthal quantum number, we can find the shape and size of orbital. तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था s orbital spherical, d orbital, s orbital spherical, p orbital dumbbell shape along py, along xyz axis under the influence of magnetic field. d orbital सारे डबल डम्बल है except dz square. f orbital का शेप का जरूरत नहीं है, it has a complex shape. तो shape of orbital इससे पता चल सकता है. Second, you can also find out number of electron in any subshell. That is given by the formula 2 into 2l plus 1. तो if I say S subshell, तो S के लिए L value क्या है 0, तो 2 into 0 0, 0 plus 1 is 1, 1 into 2 is 2, so it has 2 electron. P subshell, P के लिए L value कितना है 1, तो 2 1s are 2 plus 1 3, 3 2s are 6 electrons. अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था. D का वैल्यू क्या है L value 2, तो 2 2s are 4 plus 1, 5 2s are 10 electrons. F के लिए वैल्यू कितना होता है L वैल्यू 3, तो 2 3s are 6 plus 1, 7 2s are 14 electrons. So with the help of that you can find out. अब समझो मैंने बोल दिया G, तो G is nothing but N value will be 4, तो 2 4s are 8 plus 1 9, 2 9s are 18 electron होंगे G में. H के अंदर it will be 5, तो 2 5s are 10 plus 1 11 2s are 22 electrons, like that. So you can find number of electron in any subshell. Now do you remember, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल इज ओरिएंटिंग देमसेल्फ अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट मैनर. An electron moves in the form of wave. When it appears, when it try to orient themselves in a different manner around the nucleus, it changes its angle at every orientation. और अगर angle change होगा तो velocity change होगी, velocity change होगा तो momentum change होगा. तो azimuthal quantum number help us to find out angular momentum of orbital. तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हो जाएगा h अपॉन 2 पाई अंडर रूट ऑफ l इंटू l प्लस 1. दिस इज ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, भूलना नहीं. दिस इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, दोनों अलग अलग होते हैं. ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम nh अपॉन 2 पाई, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई अंडर रूट ऑफ l इंटू l प्लस 1. Okay, so this is about azimuthal quantum number. Now let's talk about the third quantum number, that is called as magnetic quantum number, small m. क्योंकि ये सारा जितना भी आपका knowledge है with respect to orbital, it is because of the magnetic field, and we know that electron is a tiny magnet, so try to orient themselves in different manner in the magnetic field, in spherical manner, dumbbell manner, double dumbbell manner. तो magnetic quantum number gives an idea about orbitals. Orbitals nothing but orientation. कौन सा orientation? 3-dimensional orientation of electron around nucleus. That is why it can also explain Zeeman effect, splitting of spectral line, and Stark effect. ये दोनों को ये explain कर सकता है. Now if I say number of orbitals, ध्यान रखना, number of orbitals, or you can say number of orientation, it is given by the formula 2l plus 1. तो कोई भी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स, कितने ओरिएंटेशन है, वो ये फॉर्मूला बताएगा. एंड दैट ओरिएंटेशन, द ओरिएंटेशन शुड बी इन द फॉर्म ऑफ -l 0 plus l. मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे. फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक फर्स्ट शेल, ठीक है, तो फर्स्ट शेल में सबशेल कितने होते हैं देखते हैं. तो 1 स्क्वायर यानी 1 सबशेल. आप बोलेंगे सर वो सबशेल, पहला सबशेल है S. मेरा ठीक है, वेरी गुड, S. नाउ हाउ इलेक्ट्रॉन इज ओरिएंटेड इन S. तो आप बोलेंगे सर S में सिर्फ एक ही ओरिएंटेशन है, स्फेरिकल. सो इफ आई सब्स्टिट्यूट नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स और नंबर ऑफ ओरिएंटेशन, ऑर्बिटल ओरिएंटेशन एक ही चीज होगी, इन दिस फॉर्मूला फॉर S सबशेल, तो 2 into 0. S के लिए L वैल्यू क्या होता है 0, तो 2 into 0 plus 1.
मतलब इसके पास में सिर्फ एक ओरिएंटेशन, तो वो कैसा हम लोग लिखेंगे? दैट ओरिएंटेशन इज रिटन एज 0, एम वैल्यू विल बी 0। तो स्पेरिकल ओरिएंटेशन के लिए एम वैल्यू भी 0 है और स्पेरिकल ओरिएंटेशन के लिए एल वैल्यू भी 0 है। थोड़ा और प्रिसाइसली समझ में आएगा कि मैं 0 क्यों लिख रहा हूं। सपोज मैंने बात की सेकेंड ऑर्बिट, तो सेकेंड ऑर्बिट 2 स्क्वायर, 4 ऑर्बिटल्स, वी नो दैट 4 ऑर्बिटल्स आर एस, और दूसरे 3 ऑर्बिटल पी सब शेल में होते हैं, पी एक्स, वी नो दैट देयर ऑर्बिटल्स आर पी एक्स, पी वाई, पी जेड। तो बराबर देखो, एस के लिए एक ओरिएंटेशन, नंबर ऑफ ओरिएंटेशन विल बी 2 into 0 plus 1, तो देयर इज विल बी ओनली 1 ओरिएंटेशन, तो वो हम लोग ने 0 लिख दिया। पी के लिए एल वैल्यू कितना होता है? 1, तो 2 1 2 plus 1, 3 ओरिएंटेशन। आपको पता है 3 ओरिएंटेशन कौन से है? पी एक्स, पी वाई, पी जेड। तो अब उसके लिए 3 ओरिएंटेशन के वैल्यूज स्पेक्ट्रोस्कोपिकली कैसा लिखना है? इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ -l 0 plus l, मतलब 1 ओरिएंटेशन विल बी 0, 1 will be -1, 1 will be +1, so this is 3 ओरिएंटेशन। ये तीनों ओरिएंटेशन क्या हो गए? px, pz, py, so we have this 3 orientation, okay, px, py, pz। now suppose if I go to third orbit में है s, उसमें p हम लोग d की बात करते हैं। so if I talk about d, s के अंदर तो 1 ओरिएंटेशन है, p के अंदर 3 ओरिएंटेशन आपने देख लिया। if you talk about d, so in case of d के लिए l वैल्यू कितना होता है? l वैल्यू होता है 2, तो 2 2 जा 4 plus 1, 5 ओरिएंटेशन। आपको पता है 5 ओरिएंटेशन कौन से? dxy, dyz, dxz, dx2, y2 एंड dz2, सो इट हैज 5 ओरिएंटेशन। तो 5 ओरिएंटेशन को स्पेक्ट्रोस्कोपिकली आप कैसा लिखोगे? इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ -l 0 plus l, तो 0 इज वन ऑफ द ओरिएंटेशन, -1 plus 1, 2 ओरिएंटेशन हो गए, -2 plus 2, देखो टोटल 5 ओरिएंटेशन। इफ आई टॉक अबाउट फोर्थ शेल, इट शुड बी s p d f, तो f के अंदर 7, f के लिए l वैल्यू कितना होता है? 3, तो 2 3 6 plus 1, 7 ओरिएंटेशन। अभी थोड़ी देर पहले बताया था इट हैज 7 ऑर्बिटल्स, तो 7 ऑर्बिटल्स के रेंज कैसे हो गए? इट शुड बी -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, 7 नंबर लिखने आपको, 3 नेगेटिव 3 पॉजिटिव और 1 0, 5 नंबर लिखने 5 ओरिएंटेशन में, 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव 1 0। अगर एस पी आ गया तो 3 ओरिएंटेशन लिखना है, 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव 1 0, एस आ गया तो एक ही ओरिएंटेशन 0। तो these are nothing but the spectroscopic values of orbital। भाई ये 7 डिजिट आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर 7 ऑर्बिटल है, 5 डिजिट बता रहे हैं कि यहाँ पर 5 ऑर्बिटल है, 3 डिजिट बता रहे हैं 3 ऑर्बिटल है। You have to remember this. So we have this subshell SPDF with respect to their orientation। और याद रखना एनर्जी के टर्म में s ऑर्बिटल इज वेरी क्लोज टू न्यूक्लियस एज कंपेयर टू p से थोड़ा फार होता है d, और d से बहुत ज्यादा फार होता है f। तो क्लोजनेस में s ऑर्बिटल सबसे नजदीक है न्यूक्लियस के लिए, इसके लिए s ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम, देन p ऑर्बिटल, देन d ऑर्बिटल, देन f ऑर्बिटल। यू हैव टू रिमेंबर दिस SPDF इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। सो दिस इज the 3 types of quantum number which is obtained from solving the Schrodinger wave equation। बट यहां पर सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या आ गया? ध्यान से सुनो। Each and every orbital can have maximum how many electrons? 2। हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं मैक्सिमम। सो अगर 2 इलेक्ट्रॉन है और ऑर्बिटल के अंदर, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि सर दोस 2 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द सेम एनर्जी ऑर्बिटल। यस, बट सर दोस 2 इलेक्ट्रॉन हैव नेगेटिव चार्ज, तो वो रिपेल क्यों नहीं करते? तो मैंने इसका आंसर देने के लिए अगेन क्वांटम मैकेनिक्स आपको हेल्प करता है, फिजिक्स आपको हेल्प करता है। The 2 electrons are present together but they don't repel in spite of having the same magnitude and same charge, -1.6 × 10⁻19 कूलम होने के बाद भी एक दूसरे को रिपेल नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? मतलब s सब शेल में 2 ऑर्बिटल है, सॉरी s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, px में 2 इलेक्ट्रॉन है, py में 2 इलेक्ट्रॉन है, pz में 2 इलेक्ट्रॉन है, बड़ी अपने आपको रिपेल क्यों नहीं करते? उसका रीजन ये है कि इलेक्ट्रॉन हैज 2 काइंड ऑफ मोशन, वन इज द ऑर्बिटल मोशन एंड सेकेंड इज द स्पिन मोशन। मतलब वो स्पिन मूवमेंट होते होते भी घूम रहे हैं ऑर्बिट में। तो जब इलेक्ट्रॉन अपने स्पिन पे मूव करता है तो वो स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल, एनी मूविंग चार्ज पार्टिकल विल क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड। So electron has 2 magnetic field,
वन इज द ऑर्बिटल मैग्नेटिक फील्ड एंड वन इज द स्पिन मैग्नेटिक फील्ड। तो जब वो स्पिन में जाएगा तो उसका स्पिन क्लॉक हो सकता है और स्पिन एंटी क्लॉक हो सकता है। तो अगर दो इलेक्ट्रॉन साथ में हैं तो ये अपने आप को रिपेल क्यों नहीं करते ऑर्बिटल में? बिकॉज वन क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड इन अ क्लॉकवाइज स्पिन डायरेक्शन एंड वन क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड इन द एंटी क्लॉकवाइज स्पिन डायरेक्शन। तो दोनों एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड को नलीफाई कर दिए, लाइक नॉर्थ पोल साउथ पोल, नलिफिकेशन हो गया। तो अगर सेम स्पिन रहेगा तो रिपेल करेंगे, लाइक नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ द बार मैग्नेट विल रिपेल। तो हम लोग इसकी बात नहीं कर रहे, हम बात करें कि व्हेन टू इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द सेम ऑर्बिटल दे डोंट रिपेल। व्हाई दे डोंट रिपेल? बिकॉज ऑन देयर स्पिन दे प्रोड्यूसेस ऑपोजिट मैग्नेटिक फील्ड एंड बिकॉज ऑफ द ऑपोजिट मैग्नेटिक फील्ड द मैग्नेटिक फील्ड इज नलिफाइड एंड दे डोंट रिपेल। इसके लिए एक फोर्थ क्वांटम नंबर इसके बाद आया टू एक्सप्लेन द प्रेजेंस ऑफ two electrons in the same orbital, that is called as spin quantum number denoted by small s। ये बोलता है कि अगर दो इलेक्ट्रॉन एक ही सबशेल, एक ही ऑर्बिटल में है तो दोनों की स्पिन ऑपोजिट हो सकती है। मतलब इफ आई टॉक अबाउट 1s2, तो s has 2 इलेक्ट्रॉन, सो इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्लॉकवाइज में जाएगा मैग्नेटिक फील्ड और एक होगा वो एंटी क्लॉकवाइज में जाएगा। या तो इसको हम लोग प्लस हाफ बोल सकते हैं और इसको हम लोग माइनस हाफ बोल सकते हैं, या अपवर्ड एरो इज क्लॉकवाइज एंड डाउनवर्ड एरो इज एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड। इसके लिए जब इसको मुझे रिप्रेजेंट करना है तो आई कैन रिप्रेजेंट इन टू हाफ एरोस, अपवर्ड एरो डाउनवर्ड एरो। मतलब ये क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, लाइक दैट। सो यू हैव टू सी लाइक दिस, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट मैग्नेटिक फील्ड में जा रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट होने की वजह से ये दोनों साथ में रह सकते हैं। दिस इज हाउ यू विल रिप्रेजेंट टू इलेक्ट्रॉन्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिटल। अगर वो सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो आप ऐसे ही छोड़ दो क्लॉकवाइज, लेकिन अगर दो इलेक्ट्रॉन है तो यू हैव टू पुट इन अ टू हाफवर्ड एरो, वन इन दी clockwise magnetic field, one in the anti-clockwise direction. That is why they nullify the magnetic field each other and that is why they can live together in a particular orbital. याद रखना, ये प्रॉब्लम सॉल्व किया था स्पिन क्वांटम नंबर में। Now after this, let's talk about how to write electronic configuration. What is electronic configuration? Electronic configuration is total placement of electron in an atom. एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में, कौन से सब शेल में आप उसको कैसा रखोगे, कैसा प्लेस करोगे, ये हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताता है। So electronic configuration is nothing but the placement of electrons in an atom in a particular subshells and orbital. Electronic configuration of any atom is written in the formula of NL raised to x, where n stands for the shell number, principal quantum number, L stands for the subshell number, that is nothing but the azimuthal quantum number, and x stands for the number of electron. And everyone is aware that S can have maximum 2 electron, P can have maximum 6 electron, D can have maximum 10 electrons, and F can have maximum 14 electrons. मतलब अगर मुझे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो फर्स्ट शेल में ही जाएगा और फर्स्ट शेल में सिर्फ s होता है, तो 1s raised to 1। मतलब the electron hydrogen is present in the first shell and how it is oriented in a spherical manner, that is called as s orbital। और अगर इसको मुझे सर्कल बन के ड्रॉ करना है, बताना है, तो दिस इज नथिंग बट दी एस ऑर्बिटल, ये हो गया इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज। अच्छा, इसके बॉक्स फॉर्म में बताना है तो आप बॉक्स में भी बता सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, 1s1, तो इट इज नथिंग बट दी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज बेसिकली दी हाउ यू राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब सपोज हीलियम के लिए लिखना है तो हीलियम का एटॉमिक नंबर इज 2, so it is 1s raised to 2, so it has 2 electrons। so देखो, एक क्लॉक एंटी क्लॉक, बॉक्स फॉर्म में आ गया, एक क्लॉक एंटी क्लॉक। so this is how you will fill the electron। but when it comes to lithium, so when you talk about lithium, lithium has an atomic number 3, so its electronic configuration। अब क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट शेल के s में 2 इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं। अब उसके पास एक इलेक्ट्रॉन बच गया तो एक इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल में जाएगा क्योंकि फर्स्ट में मैक्सिमम 2 रह सकते हैं।
बट सेकेंड शेल में वी हैव 2s एंड 2p। तो क्वेश्चन ये सर इन दोनों में से हम किस में इलेक्ट्रॉन डालें। सो नाउ दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व Aufbau principle. Aufbau is a German word which means building up. Aufbau principle फॉलो करके आप इलेक्ट्रॉन्स को रिस्पेक्टिव शेल सब शेल में फिल कर सकते हैं. Aufbau principle has two rules to follow to fill the electron. Rule number one is lowest n plus L orbital will be filled first. मतलब जिसका n plus L कम होता है उसको पहले भरो. अब जैसा हम लोग यहाँ कंफ्यूज थे कि यहाँ पर 2s और 2p है, तो दोनों का n plus L निकालो. तो 2s के लिए n वैल्यू विल बी 2, बट s है तो L वैल्यू विल बी 0, तो इसका आंसर 2 आता है. 2p के लिए n वैल्यू विल बी 2, बट L वैल्यू विल बी 1, तो इसका आंसर 3 आता है. तो इसमें से लोएस्ट n plus L किसका है? 2s का. इसके लिए जो 2 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद एक इलेक्ट्रॉन बचा है, इट विल गो इन 2s. So when you draw it, समझो बॉक्स में किया आपने, तो this will be the box of 1s with 2 electrons and this is a box of 2s with 1 electron. If you see properly, 1s और 2s के बीच में मैंने गैप रखा है. It means they don't have same energy. Obviously they have different energy. One has lower energy and 2s has more energy. So using this Aufbau principle, you can easily solve, you can easily fill the electron in the respective subshell. But guys, सपोज n प्लस एल टाई हो गया, किसी दो ऑर्बिटल का n प्लस एल सेम निकला, तो क्या करेंगे? तो रूल 2 फॉलो करो. इफ देयर इज अ टाई विद रिस्पेक्ट टू n प्लस एल, देन ऑर्बिटल विथ लोएस्ट n विल बी फिल्ड फर्स्ट. मतलब जिसका n वैल्यू सबसे कम रहेगा उसको पहले भर दो. फॉर एग्जाम्पल हम लोग ने सपोज ले लिया है 3d एंड 4s. 3d द d बिलोंग्स टू थर्ड, 4s भी ले लिया है, और एक काम करते हैं हम लोग 3d ले लेते हैं, नहीं हाँ देखो 4s ले लेते हैं, 3d ले लेते हैं, 4p ले लेते हैं. तीन कंपेयर करते हैं कि मेरे पास s ऑर्बिटल फोर्थ शेल का है, d ऑर्बिटल थर्ड शेल का है, p ऑर्बिटल फोर्थ शेल का है. तो अब सबके n प्लस एल निकालो. तो इसमें n प्लस एल क्या होगा? 4 प्लस 0 दैट इज 4. इसका होगा 3 प्लस d के लिए एल वैल्यू कितना होता है? 2 होता है, तो 3 प्लस 2 यानी 5. फिर 4 के लिए n वैल्यू 4, p के लिए एल वैल्यू 1, तो 4 प्लस 1 5. अब इन सब में से सबसे लोएस्ट कौन है? 4s. तो 4s सबसे पहले भरेगा. बट देयर इज अ टाई बिटवीन 3d एंड 4p बिकॉज बोथ हैज सेम n प्लस एल वैल्यू. So the tie is broken in favor of that orbital which have lowest n. तो सबसे lowest n किसका है? 3d का. इसका n वैल्यू कम है, तो पहले आप 3d को भरो, उसके बाद में 4p आएगा. तो फर्स्ट 4s भरेगा, फिर 3d भरेगा, फिर 4p भरेगा. तो 4s के बाद आप 4p नहीं भर सकते because 3d has lowest n as compared to 4p and there is a tie between n plus n. So ये दोनों रूल्स फॉलो करके एक शॉर्टकट बनता है, that is a schematic representation of all orbital with respect to increase in energy, और आपको इलेक्ट्रॉन वैसे ही फिल करना है. तो see this properly. We first shell has s subshell, second has s and p, third subshell is s, p and d, fourth has 4s, 4p, 4d, 4f, 5 has 5s, 5p, 5d, 5f, 5g, 5h की जरूरत नहीं है हमको, 6s, 6p, 6d, 6f, then you have 7s, 7p. यहां तक क्या हो जाता है पूरा पीरियोडिक टेबल. सो एनर्जी इज इंक्रीजिंग इन दिस मैनर. ऊपर की तरफ बढ़ रही है, मतलब सबसे लोएस्ट एनर्जी 1s की है, तो पहले 1s फिल करो, फिर 2s की है, फिर 2s फिल करो, फिर उसके बाद 2p की आएगी एनर्जी सबसे कम, तो 2p के बाद में आता है 3s के बाद में आएगा 3p, फिर 4s, फिर उसके बाद में आता है 3d, 4p, 5s, 3d, 4p, 5s, यहां लिख देता हूं मैं 5s. Then you have 4d, 5p, 6s, 4d, 5p, 6s. Then 6s के बाद में 4f, 5d, 6p, 7s, 4f, 5d, 6p, 7s. Then you have 5f, 6d, 7p, 5f, 6d, 7p. So this is how you will fill the electron in the respective subshell. तो suppose मैंने आपको बोल दिया है स्कैंडियम, atomic number 21. तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन आप 1s में डालेंगे, सो इट विल बी 1s2. फिर 2 इलेक्ट्रॉन 2s में डाल सकते हैं, आपके पास 21 इलेक्ट्रॉन है, 2s2, 2p6, 3s2,
3p6, देखो यहां तक के 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, अपने 1s 2s 2p में 6 डाल दिया क्योंकि p कैन हैव मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स। फिर p के बाद में अपने 3p में डाल दिया 6, तो यहां तक के 2 + 2 4 + 6 10 10 + 2 12 12 + 6 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन बाकी है। तो 3p के बाद में आता है 4s, s कैन हैव मैक्सिमम 2, तो 4s2। अब एक ही इलेक्ट्रॉन बाकी है, तो 4s के बाद कौन आएगा 3d, तो दैट लास्ट इलेक्ट्रॉन गोस इनटू 3d, देयरफॉर स्कैंडियम बिलोंग्स टू डी ब्लॉक। तो अब देखो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्कैंडियम का, बिकॉज डी में 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। नाउ दिस इज द ओपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इफ दे आस्क यू टू राइट डाउन कंडेंस फॉर्म, तो कंडेंस फॉर्म के लिए नोबल गैस का हेल्प लो। नोबल गैस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। एटॉमिक नंबर 2 10 18 36 क्रिप्टॉन, 54 जेनॉन, 86 रेडॉन। तो कैसा करने का, हाउ टू राइट डाउन कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। टू राइट डाउन कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वी टेक अ हेल्प ऑफ नोबल गैस। जो भी आपका एलिमेंट है उसका पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, उसके बाद में सिलेक्ट अ नोबल गैस विच हैज लेसर atomic number and closest to scandium, less and closest to scandium। atomic number ऐसा नोबल गैस सिलेक्ट करो जिसका एटॉमिक नंबर स्कैंडियम से कम हो और क्लोज हो। तो स्कैंडियम से आर्गन भी कम है, नियॉन भी कम है और हीलियम भी कम है, लेकिन सबसे क्लोज आर्गन है। तो आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन। सो 2 + 2 + 6 10 + 2 12 + 6 18, मतलब ये पूरा जो कॉन्फ़िगरेशन है ये आर्गन का है। तो एक्चुअली में स्कैंडियम को मैं ऐसा लिख सकता हूं, आर्गन 4s2 3d1 और 3d1 4s2। अगर अरेंज करके लिखना प्रॉपरली तो 3d1 जो इनर शेल, 4s2 आउटर शेल, तो ऐसा भी आप लिख सकते हो स्कैंडियम को कंडेंस फॉर्म में। अब सपोज मैंने ले लिया है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर हो गया 13, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 1s2 2s2 2p6, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। देन 2p के बाद में आ जाता है, 2p के बाद में आता है 3s, सो 3s2 12, 3s के बाद में आता है 3p, सो 3p1। अब ये एल्यूमिनियम का ओपन चेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। देखो आपने 2 + 2 4 + 6 10 + 2 12 + 1 13 इलेक्ट्रॉन यूज कर लिया। इसका नियरेस्ट नोबल गैस कौन है, नियॉन है। देखो एटॉमिक नंबर 10, तो ये पूरा पार्ट नियॉन हो गया विद 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसकी जगह पे आप लिख सकते हो नियॉन 3s2 3p1। So this becomes the outer electronic configuration for aluminium. This becomes the outer electronic configuration for scandium. Okay? तो आपको क्या करना है, you write down the electronic configuration of atoms from atomic number 1 to atomic number 30. तो जब आप 1 से 30 लिखोगे आपको 2 एक्सेप्शन केस मिलेंगे। एक एक्सेप्शन केस होगा क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24 और एक एक्सेप्शन केस होगा कॉपर एटॉमिक नंबर 29। ये दोनों एक्सेप्शन केस पढ़ाने से पहले मैं एक रूल क्लियर कर देता हूं, दैट इज हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीसिप्लिटी। फिर ये एक्सेप्शन केस पढ़ाऊंगा। हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीसिप्लिटी गिव्स एन आइडिया अबाउट फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेम एनर्जी ऑर्बिटल। एक ही जैसा ऑर्बिटल है, सेम एनर्जी है, उसमें आप इलेक्ट्रॉन फिलिंग कैसा करेंगे। तो इट सेज when you fill electrons in orbitals having same energy, then each orbital should get one electron, and if there are extra electrons, start filling from the first orbital with opposite spin. Easily समझाने के लिए सपोज मैंने कार्बन लिया जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखूंगा 1s2 2s2 2p2, ये 2 इलेक्ट्रॉन p में बच गए। तो this is a box of 1s having 2 electrons, clock anti-clock. This is a box of 2s having 2 electrons, clock anti-clock. But 2p में 3 orbitals होते हैं, if you remember, px, py, pz. So these orbitals have same energy. इसके लिए देखो तीनों के बॉक्स को साथ में बनाया है। इनके अलग अलग बना रहा हूं क्योंकि एनर्जी डिफरेंस है, px, py, pz. Now you have 2 electrons. So कैसे रखोगे? You cannot place this 2 electron in same energy orbital like this. दो एक साथ नहीं डाल सकते. What do you do? You put one here clock, you put one here clock. This is how you will fill it. तो बोला सर कार्बन छोड़ दो, नाइट्रोजन ले लो एटॉमिक नंबर 7। मैंने 7 मतलब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो 2 से 2p3 होगा, 2p3 मतलब एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, 1 1 ईच। आप 2 इसमें और एक इसमें नहीं डाल सकते। इफ दे आर सेम एनर्जी लेवल फिल 1 1 ईच।
सपोज नाइट्रोजन नहीं बोला सर, ऑक्सीजन ले लो, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, मतलब 2p3 के बदले वो हो जाएगा 2p4. सो नाउ यू हैव 4 इलेक्ट्रॉन्स. सो 4 इलेक्ट्रॉन्स मतलब 1 2 3, फिर फर्स्ट से स्टार्ट करो विद ऑपोजिट स्पिन 4. तो दोनों का ऑपोजिट स्पिन है, इसके लिए मैं इसको ऐसा रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, क्लॉक एंटी क्लॉक, बाकी दो क्लॉक है. सपोज मैंने फ्लोरीन लिया, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, तो यहां पर हो जाएंगे 5, 2p5, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो एक इलेक्ट्रॉन आप यहां डालोगे अभी, क्लॉक एंटी क्लॉक. लेकिन सपोज मैंने लिया था नियॉन, एटॉमिक नंबर, नियॉन का एटॉमिक नंबर इज व्हाट 10, तो 2p6, तो 6 इलेक्ट्रॉन है, सो 1 2 3 4 5 6. देखो ऑपोजिट, इसके लिए इनको फिर ऑपोजिट में कैसा लिखने का, क्लॉक एंटी क्लॉक, हाफ हाफ स्पिन, क्लॉक एंटी क्लॉक, हाफ हाफ स्पिन, क्लॉक एंटी क्लॉक. So Hund's rule of maximum multiplicity says that when you fill a particular orbitals of same energy, then fill one electron each, and if you have extra electrons, start from the first orbital and fill it in a opposite spin. That is Hund's rule. Now let's go back to the discussion of chromium and copper. Why chromium and copper shows anomalous behavior. Anomalous behavior मतलब जो अफबाउ प्रिंसिपल है उसको वो फॉलो नहीं करते, बाकी सारे एलिमेंट्स 30 तक के उसको फॉलो करते हैं. जैसे अब क्रोमियम की बात करते हैं हम लोग, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 है. तो इफ आई राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ क्रोमियम, यू हैव 24 इलेक्ट्रॉन, यू स्टार्ट फ्रॉम 1s. सो यू हैव 1s 2 इलेक्ट्रॉन, 2s 2 इलेक्ट्रॉन, 2p6 इलेक्ट्रॉन, 3s 2 इलेक्ट्रॉन, 3p6 इलेक्ट्रॉन, 18 हो गया. देन उसके बाद में आता है 4s 2 इलेक्ट्रॉन, 20. फिर 4s के बाद में क्या आएगा, 3d. सो यहां तक के 20 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स बाकी है, तो 3d में आप 4 डाल दोगे. तो अगर सर कंडेंस फॉर्म लिखना है तो इसका कंडेंस फॉर्म हो जाएगा आर्गेन. देखो ये आर्गेन हो गया पूरा, 4s2 3d4. दिस शुड बी द एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ क्रोमियम, बट ये नहीं आया. द ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ क्रोमियम, which is the corrected configuration, practical configuration is argon 4s1 3d5. देखो क्या हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन, हम यहां बोल सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम 4s to 3d and make it 3d5. एक्सेप्शन मतलब यहां पर ऑफ बाउ का वायलेशन हो रहा है, वायलेशन ऑफ द ऑफ बाउ प्रिंसिपल. क्रोमियम इज नॉट फॉलोइंग ऑफ बाउ प्रिंसिपल. 4s2 होना चाहिए था बट 4s1 है, 3d4 होना चाहिए बट 3d5 निकला. सिमिलरली विद द कॉपर, इफ यू write down the electronic configuration of copper with respect to of-bow principle, you will get it as argon, atomic number 29 होता है कॉपर का, argon 4s2 3d9. ये होना चाहिए बट ये नहीं मिला. The actual configuration of copper is argon 4s1 3d10. देखो अगेन एक इलेक्ट्रॉन 4s से जंप करके किसमें चला गया, 3d में. यू कैन से दैट. तो क्यों ऐसा हो रहा है? So let us try to understand. फर्स्ट ऑफ ऑल, s ऑर्बिटल इज स्पेरिकल, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में है तो न्यूक्लियस को सब जगह से सराउंड कर सकता है इक्वली, क्योंकि s ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शन होता है. बट p ऑर्बिटल इज डायरेक्शनल. इन p ऑर्बिटल्स देयर आर 5 ऑर्बिटल्स एंड दे विल सराउंड द न्यूक्लियस फ्रॉम 5 साइड. एक z एक्सिस से आ रहा है, एक्स वाई से आ रहा है, एक एक्स वाई प्लेन से आ रहा है, एक वाई जेड प्लेन से आ रहा है, एक डी जेड प्लेन से आ रहा है. सो देयर आर 5 ऑर्बिटल्स which are surrounding the nucleus from 5 different angles. ठीक है, तो अगर मैं d4 लेता हूं तो न्यूक्लियस 4 जगह से सराउंड होगा इन d ऑर्बिटल, बट एक d ऑर्बिटल एम्प्टी हो जाएगा तो वहां से उसको सराउंडिंग नहीं मिलेगी इलेक्ट्रॉन की. बट अगर मैं d5 लेता हूं तो पांचों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन्स आ गए इन इक्वली सराउंडिंग. मतलब इफ आई टेक इट एज d4, सो d4 1 2 3 4, it has 4 electrons. एक ऑर्बिटल आपका खाली बच जाएगा. बट इफ आई टेक d5, 1 2 3 4 5, तो it has 5 इलेक्ट्रॉन इक्वली सराउंडिंग द न्यूक्लियस फ्रॉम ऑल साइड. तो s में एक इलेक्ट्रॉन होने दो, 2 इलेक्ट्रॉन होने दो, वो न्यूक्लियस को तो स्पेरिकल मैनर में सराउंड करेगा. लेकिन d के अंदर, p के अंदर, p ऑर्बिटल d ऑर्बिटल ये डायरेक्शनल होते हैं. तो आप इमेजिन करो p ऑर्बिटल px py pz पे, px में इलेक्ट्रॉन है, py में है बट pz में नहीं है, तो pz से वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिसिंग हो गया. सिमिलरली d में, तो d में 5 ऑर्बिटल है जो न्यूक्लियस को 5 अलग अलग जगह से सराउंड कर रहे हैं. एक z एक्सिस से कर रहा है, एक xy से कर रहा है, एक xy के प्लेन से कर रहा है, एक yz के प्लेन से कर रहा है, एक xz के प्लेन से कर रहा है. तो अगर सब में एक एक इलेक्ट्रॉन हो गए
So the surrounding will be equal. There will be more symmetrical surrounding around the nucleus if it is D5 rather than D4. So D5 में symmetrical surrounding है, same as copper. कॉपर में D9 लिखा तो D9 देखो ऐसा दिखाई देगा, 9 इलेक्ट्रॉन्स इन D, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो एक अकेला बच जाता है सराउंडिंग में. बट इफ आई टेक D10, सो D10 मतलब ऑल आर कंप्लीटली फिल्ड, तो इक्वल सराउंडिंग ऑफ न्यूक्लियस फ्रॉम ऑल द साइड. सो द फर्स्ट रीजन व्हाई इट इज D5 is called as half filled orbital. Obviously D में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं. अगर आप D5 बोलोगे मतलब हाफ फिल्ड, अगर D10 बोलोगे मतलब कंप्लीटली फिल्ड. सो द फर्स्ट रीजन व्हाई इट इज नॉट D4 and D5 and why it is not D9 and it is D10 is the symmetry. In case of half filled and completely filled, nucleus is getting symmetrical force of attraction of electron from all the sides. Okay, तो पहला तो रीजन ये है. दूसरा रीजन रिसर्चर्स बोलते हैं एक्सचेंज फोर्सेस. ये थोड़ी सुनने वाली बात है. एक्सचेंज फोर्सेस क्या है? When electrons are present in same orbital having same energy, or you can say degenerate का मतलब मैंने बताया था orbitals with same energy. तो अगर मैं D की बात कर रहा हूं तो D में 5 ऑर्बिटल है, पांचों की एनर्जी सेम है. ठीक है, तो इन द सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज देयर पोजीशन. एक्सचेंज शिफ्ट नहीं, एक्सचेंज देयर पोजीशन. मतलब अगर ये एक डी ऑर्बिटल है, ये दूसरा डी ऑर्बिटल है, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन इधर से जम करके इधर आएगा तो वो इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिटल से जम करके फर्स्ट में आएगा. एक्सचेंज करते रहते हैं अपनी पोजीशन, और जब वो पोजीशन एक्सचेंज करते हैं तो एनर्जी लॉस करते हैं. एंड व्हेन एनर्जी इज लॉस, स्टेबिलिटी इज अचीव, बिकॉज एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी. आप पूरा दिन काम करते 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 रात में थक गए, आपने इतनी एनर्जी लॉस करी, आप थक गए, and you sleep. When you sleep, you get more stable, non-reactive. When you are awake, you are less stable, more reactive. इसके लिए आप काम कर सकते हो. इसके लिए energy is inversely proportional to stability. Similarly, बराबर देखोगे तो यहां पर in case of D4, this electron can exchange position with this one electron, second electron, third electron. मतलब ये इलेक्ट्रॉन 3 पोजीशन एक्सचेंज कर सकता है. तो अगर मैं D4 बनाता हूं 2 3 4, तो ये इलेक्ट्रॉन 3 पोजीशन एक्सचेंज कर सकता है, 3 पोजीशंस. ये इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी इसके साथ कर चुका है तो ये 2 पोजीशन करेगा एक्सचेंज. ये इलेक्ट्रॉन इन दोनों के साथ कर चुका है तो ये 1 पोजीशन एक्सचेंज करेगा. तो टोटल कितने पोजीशन एक्सचेंज होंगे? 6. मतलब 6 टाइम एनर्जी लॉस होगी, तो 6 टाइम स्टेबिलिटी. लेकिन अगर मैं इसको D5 कर देता हूं 1 2 3 4 5, तो दिस इलेक्ट्रॉन कैन एक्सचेंज 4 पोजीशन. ये इलेक्ट्रॉन एक कर चुका है तो अब कितने पोजीशन एक्सचेंज करेगा? 3. ये 2 से कर चुका, अब कितने करेगा? 2. ये कितना करेगा? 1. तो 4 + 3 + 2 + 1 मतलब 10 एक्सचेंज, मतलब 10 टाइम एनर्जी इज लॉस. इफ 10 टाइम एनर्जी इज लॉस, मोर एनर्जी लॉस, मोर स्टेबिलिटी. तो दिस एनर्जी लॉस इज कॉल्ड एज एक्सचेंज फोर्सेस. तो ज्यादा एक्सचेंज फोर्सेस, ज्यादा एनर्जी लॉस, ज्यादा स्टेबिलिटी. तो वी कैन से D5 and D10 हैव मोर सिमेट्री and more exchange energy. That is why D5 यानी half filled d orbital, D10 completely filled d orbital are more stable than D4 and D9. Therefore copper and chromium shows exceptional behavior. और आपको ये दिमाग में याद रखना बहुत जरूरी है, कोई भी ऑर्बिटल का हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड बहुत स्टेबल होता है. जैसे P में P3 and P6. P3 is 1 1 1, PX1, PY1, PZ1 more stable configuration. D के अंदर D5 D10 more stable configuration. F में F7 F14, F7 7 orbitals half filled, F14 completely filled, more stable. So half filled और completely filled orbital have more stability. ये याद रखने का, because of maximum symmetry and because of maximum exchange forces. That is why copper and chromium shows exceptional behavior. Okay guys, now सो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना घर पे, कंडेंस भी लिखो, ओपन भी लिखो 1 से 30 तक के, और कॉपर एंड क्रोमियम का एक्सेप्शन केस फिल वक्त के लिए याद रखो. व्हेन यू गो टू 12th स्टैंडर्ड ज्यादा एक्सेप्शन केस दिखाई देंगे इन द पीरियोडिक टेबल. यू विल सी मोर एक्सेप्शन केसेस. नाउ आई हैव टू कंप्लीट विद 2 more points.
एक रूल, हंस रूल मैंने बता दिया है, ऑफ-बॉ प्रिंसिपल मैंने बता दिया है. लेट अस टॉक अबाउट पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल सेज no two electron can have all four क्वांटम नंबर सेम. मतलब किसी भी दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर प्रिंसिपल, एज्यूमिथल, मैग्नेटिक, स्पिन सेम नहीं हो सकते. एक सेम हो सकता है, दो सेम हो सकता है, तीन सेम हो सकते हैं, चार सेम नहीं हो सकते. फॉर एग्जाम्पल लेने के लिए मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल दे देता हूं. Let's take example of lithium. Lithium atomic number 3, electronic configuration 1s2, 2s1. It has 3 electron. So this is electron 1, electron 2, electron 3. देखो पहले दो इलेक्ट्रॉन s में प्रेजेंट है, इजीली मिल रहा है. तो अगर मैं n वैल्यू लिखता हूं तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन फर्स्ट शेल, सेकेंड इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन फर्स्ट शेल, बट थर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन सेकेंड शेल. तो इनकी n वैल्यूज हो गई. एज्यूमिथल वैल्यूज दोनों s ऑर्बिटल है, तो s ऑर्बिटल के लिए l वैल्यू 0 होता है. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इफ l इज 0, m इज ऑल्सो 0 फॉर s ऑर्बिटल बिकॉज दोनों जगह s ही है. स्पिन क्वांटम नंबर, अब ये दो इलेक्ट्रॉन साथ में, तो एक हो जाएगा क्लॉक, एक हो जाएगा एंटी क्लॉक. अब ये अकेला इलेक्ट्रॉन है तो क्लॉक. नाउ सी प्रॉपर्ली, व्हेन यू कंपेयर इलेक्ट्रॉन 1 विद इलेक्ट्रॉन 2, n वैल्यू सेम, l वैल्यू सेम, m वैल्यू सेम, s इज डिफरेंट. तो अगर तीन क्वांटम नंबर भी सेम आए तो फोर्थ डिफरेंट आएगा, दैट विल बी स्पिन. सो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि टू इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द सेम ऑर्बिटल कैन हैव ऑल थ्री क्वांटम नंबर सेम बट दे हैव फोर्थ यानी स्पिन क्वांटम नंबर डिफरेंट. अब फर्स्ट और एक काम करते हैं, फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करते हैं. फर्स्ट और थर्ड, तो उनके लिए s वैल्यू देखो सेम आ रहा है, m वैल्यू भी सेम, l वैल्यू सेम, n वैल्यू डिफरेंट. सेकेंड और थर्ड को कंपेयर करो, L value same, M value same, but N and S is different. So, two electrons in a particular atom, एक ही एटम में दो इलेक्ट्रॉन के तीन क्वांटम नंबर सेम हो सकते, दो एक क्वांटम नंबर सेम हो सकते, बट चारों कभी भी सेम नहीं हो सकते. दैट इज कॉल्ड एज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. कीप दैट इन माइंड. एंड लास्ट पॉइंट बिफोर फिनिशिंग द लेक्चर, मैं थोड़ा सा आपको वापस शेल सब शेल में लेके जा रहा हूं. अगर हम लोग फर्स्ट शेल की बात करेंगे तो दिस इज 1s, सेकेंड में वी हैव 2s एंड 2p. तो मैं देखो ये 2s बता रहा हूं, और मैंने आपको बताया था कि 1s और 2s के बीच में जो एम्प्टी नोड होता है इसको हम लोग स्पेरिकल नोड बोलते हैं. याद रखो, द फॉर्मूला टू कैलकुलेट स्पेरिकल नोड, द फॉर्मूला टू कैलकुलेट नंबर ऑफ स्पेरिकल नोड इज n माइनस l माइनस 1. क्यों? बराबर देखो, अगर मैं थर्ड शेल बता रहा हूं तो थर्ड शेल में भी 3s होगा. सपोज दिस इज 3s ऑफ द थर्ड शेल, तो 3s और 2s के बीच में एक नोड आ रहा है, 2s और 1s के बीच में एक नोड आ रहा है. तो अगर मुझे ये फाइंड करना है कि थर्ड शेल में स्पेरिकल नोड्स कितने हैं, तो 3s के लिए n माइनस l माइनस 1 कितना होगा, n वैल्यू विल बी 3, l वैल्यू विल बी 0 क्योंकि s है, एंड माइनस 1, तो दैट कम्स टू 2. सो यू हैव 2 नोड्स. तो स्पेरिकल नोड्स फाइंड करने का ये तरीका है. अच्छा, अगर p ऑर्बिटल है तो आपको याद होगा p ऑर्बिटल डंबल शेप होता है और उसके बीच में एक प्लेनर नोड पास होती है. जब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 0 बिकॉज यह न्यूक्लियस होता है. टू फाइंड प्लेनर नोड्स द फॉर्मूला इज स्मॉल n. बस मतलब p ऑर्बिटल the small l is 1, तो it has 1. Every p orbital has one planar node. Obviously p ऑर्बिटल में एक डंबल का लोब ऊपर होता है, एक डंबल नीचे होता है, बीच में न्यूक्लियस होता है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे क्योंकि यहाँ न्यूक्लियस है. तो यहाँ पर एक ही प्लेन जाएगा ना, तो एक p ऑर्बिटल में एक प्लेन. d ऑर्बिटल में दो डंबल होते हैं, डबल डंबल. समझो एक डंबल x पे है, एक डंबल y पे है. सो एक प्लेन ऐसा मिलेगा और एक प्लेन ऐसा मिलेगा, नोडल प्लेन. सो d के लिए L value will be 2, so it has 2 nodal plane. F can have 3 nodal planes. So this is planar nodes and this is spherical nodes where probability of finding the electron is 0. So guys, we have covered Heisenberg uncertainty principle, Schrodinger wave equation. With the help of Schrodinger wave equation, we able to find out the three-dimensional orientation of the electron around the nucleus, that is called as orbitals. And by calculating Schrodinger wave equation, we get values of three quantum numbers, principal, azimuthal, magnetic, and two electrons can live together. वो problem किसने solve किया? Spin quantum numbers, because they have two different spin.
Then we have seen Aufbau principle to filling the electron with respect to the lower energy level to higher. अगर tie हो गया तो lowest end rule apply करने का. Then Hund's rule of maximum multiplicity, how to fill the electron in the orbital of same energy. 1 1 fill करो. अगर ज्यादा बच गए then start from the initial orbital with opposite spin. And then we have done Pauli's exclusion principle. No two electron can have all 4 quantum numbers same. In between we have discussed the anomalous behavior of copper and chromium जो symmetry और exchange forces पे depend करता है, where we say half filled orbitals and completely filled orbitals are stable configuration because of symmetry and greater exchange forces. And last but not the least, how to find the number of spherical nodes and number of planar nodes. So read your textbook, read class notes, solve MCQs on basis of today's lecture. Last lecture में we will cover the dual nature of electrons, which is more related to physics. आराम से हो जाएगा. Till then, take care. Bye.